السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہم وقتاً فوقتاً کرپشن کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حکومتی بے حسی کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن آج سے ہم پوائنٹ آؤٹ کیا کریں گے مختلف محکموں کے واقعات جن میں ہم ان کی زبوں حالی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ وجوہات بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، امپروومنٹ کے کچھ میتھڈز، کچھ طریقے بھی ڈسکس کیا کریں گے، اور اس کے لیے ہم گزارش کریں گے تمام متعلقہ محکموں سے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو ضرور دیں، اسپیسیفکلی دیں، پوائنٹ آؤٹ کر کے دیں. ہم اس کا تذکرہ اپنے شو میں ضرور کریں گے. آج اس سلسلے کی پہلی کڑی، پہلا شو ڈسکس کرے گا پی آئی اے کو، کیونکہ پی آئی اے ہے جس نے بدحالی میں سب کو بیٹ کر رکھا ہے. ہم زیادہ ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ اس کے لیے ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. قصہ مختصر، نواز لیگ کے گزشتہ 3 سالہ دور حکومت میں اس بد نصیب ایئر لائنز کو 104 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا. ایئر بس A310 یہ تقریباً $7 ملین کا قابل استعمال طیارہ ہم نے گزشتہ دنوں 57 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا. یہ $57 لاکھ نہیں ہے، روپے ہیں. سر اتنے کا مجھے دے دیتے. آپ کیا کرتے اس کا؟ سر اس کو میں 10 گنا مہنگا کر کے بھیج دیتا. ہاں جی، کباڑ خانے میں یہ واقعی 10 کیا، یہ 50 گنا مہنگا بھی بک سکتا ہے. انہوں نے اپنا شیئر بھی بیچے ہے. اچھا، تم نے یہ اینک کیوں لگا رکھی؟ سر اس کی آنکھ پہ بھونڈ لڑا ہے. بھونڈ نہیں ہوتا، بھیڑ ہوتی ہے. بھیڑ نہیں، بھیڑ اور ہوتی ہے سر. بھیڑ ہی ہوتی ہے. بھونڈ نو لڑتے سر کہنا سر سے آپ کو کبھی بھونڈ لڑا؟ کئی دفعہ مجھے تو کابلی ڈیمو بھی لڑ چکا ہے. وہ کالا بڑا والا نہیں، کالا ٹٹن ہوتا ہے، مجھے وہ بھی کاٹ چکا ہے. اچھا، انہوں نے بھونڈا نے بارش میں پتا ہے. کابلی ہوتا ہے پیلا اور مرون کلر کا، بڑا خوفناک ہوتا ہے. یار جنہوں بھونڈ لڑے انہوں نظر آتا ہے کہ میں کی دیکھ رہے ہیں. اچھا جناب، یہ وہ طیارہ تھا جو آپ تھرو اوے پرائس پہ بھی دے دیتے نا. کسی کباڑی کو 70 لاکھ روپیہ تو صرف اس کے لوہے کا مل جائے. اس کے اندر لا تعداد چیزیں ہوتی ہیں. نیویگیشن سسٹم اتنا مہنگا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر وائرنگ ہوتی ہے. یہ یہاں سے اڑ کے گیا ہے مالٹا سے جرمنز کے حوالے کر دیا گیا. اب جو پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ ہماری اس ایئر لائنز کا جو سی ای او ہے وہ بھی جرمن بتایا جاتا ہے. اب دیکھو نا، دال میں کچھ کالا خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ بھی وہ بھی جرمن. ڈیل بھی جرمنی کے ساتھ ہوئی، اتنی سستی ہوئی. ٹینڈرز ابھی کئی دن بعد کھلنے تھے، پہلے بیچ دیا گیا. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو بعد میں پریشانی کا باعث بنتی ہیں. چونکہ موضوع آج پی آئی اے ہے، اس لیے ہم نے ڈمی میوزیم سے دعوت دے رکھی ہے پی آئی اے کی 3 سابق ایئر ہوسٹسز کو. ان کے ساتھ ہم گفتگو بعد میں کریں. سر حکومت پی اے کے نقصان کی بڑی وجہ سرپلس مین پاور بھی بتا رہی ہے، لیکن المیہ دیکھیے، اپنے ہمارے لوگ گھر بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں بغیر کچھ کیے، اور ہم باہر سے جہاز بمہ عملہ لے کر مزید بوجھ اس ایئر لائن پر ڈال رہے ہیں. کہنا یہ ہے ان کا کہ جناب ہمارے 3500 بندے ہیں جو مستقل گراؤنڈڈ ہیں، وہ کسی جوگے نہیں ہیں، نہ انہیں کام آتا ہے نہ کچھ اور، وہ صرف اور صرف نقصان کا باعث ہے. چنانچہ ہمیں باہر سے لوگ لینے پڑتے ہیں. تمہیں اتنی جرت نہیں ہے، تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ انہیں نکال باہر ہی کر دو. سر انہوں نے بھی گل کر لو، وڈی باجی بیٹھی بیٹھی پتل ہی نہ بن جائے. پہلے یہ بیڑا کر رکھو ہے. اچھا جی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی. اصل بات اب تک یہ ہے کہ ہم تینوں نے اکٹھے پی آئی اے چھوڑی. اچھا، ایک اور نئی ایئر لائن آ رہی ہے، اس کو جوائن کرنے کے لیے. اچھا، تو آپ تھرو آؤٹ ایسی تھی یا اب ہوئی ہیں؟ سر ایکچولی یہ آپ دوست دی ایئر ہوسٹس ہے. آپ دوست اڑتی ہے بلا؟ سر جیڑی آپ دوست چاہے ہوندی سی نا وہ اڈن لگ پندی سی. اچھا جی، آپ بھی ایئر ہوسٹس ہیں؟ اور تن میں سائنسدان لگن دئی ہے. اچھا تینوں بہن بھرا نے. اچھا جی، آپ اپنی سٹوری سنائیے. ایک نئی ایئر لائن آ رہی ہے نا. اچھا، ہاں، سرین ایئر لائنز آ رہی ہے بھائی. اچھا جی، ہمارے پاس کچھ اور ہی سٹوری ہے. آپ سمگلنگ میں انوالو تھیں اور آپ پر بھی سمگلنگ کا الزام. الزام کا کیا ہے؟ الزام تو آپ کے پرائم منسٹر پہ بھی لگا ہوا ہے. معاف کیجیے گا، وہ کرپشن کا ہے، سمگلنگ کا نہیں. اے بڑی باجی جڑی ہے سر، ہاں جی، یہ جہاز چوک کے سٹارٹ کر دی تھی.
कई बार ये सुटती सी जहाज लंदन पहुंच जाता सी। आप बताइए ना, आप पे क्या इल्जाम था? इल्जाम तो इल्जाम ही होता है आफ्ताब साहब। हाँ जी। ਐ ਸੜਨੀ ਮਾਂਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਆਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚਰਸ ਭਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਕਰ ਲੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਲਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ। और बेचने वाले थे? उसकी कोई मजबूरी होगी, हालांकि बहुत अच्छा सामान था। आपने क्या स्मगल किया? इन्हें पूरा जहाज ही स्मगल कर दिया। ये बीबी जो है ना, ये एक से जायद मर्तबा एक ही हरकत करते पकड़ेगी, वो क्या सर? और वो है मोबाइल्स की स्मगलिंग। नहीं तो अगर बंदा वहां से आ रहा है तो अपने किसी अजीज रिश्तेदार के लिए अगर 2-4 मोबाइल ले आए तो वो स्मगलिंग है। 2-4 ले आए ना, 600 मोबाइल लाई हो। वो किसी ने गलती से मेरे बैग में डालती है। गलती से तुम्हारे बैग में कैसे डल गया भी? अच्छा ओदी जो बेच 4 रुपये हो तो चुप सी। अच्छा एक दिन गलती ना ना ये पर्स च को मज पा गया। सर बड़ी वड्डी स्मगलर है मोटो। ਇਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਬਰਾਮਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। अच्छा। ਇਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਈਫਲ ਟਾਵਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। शुक्र कर बाजी दवाइयां नहीं फड़ी गई, नहीं तो बैग चो बुर्ज खलीफा निकल आना। वैसे आपने यहाँ इंसल्ट करने के लिए बुलवाया? जी किसकी इंसल्ट? बुर्जुल खलीफे थी सर और की थी। अच्छा जी, आपके पर्स से भी कभी कुछ बरामद हुआ है या नहीं? इनहेलर, एक्सरे, खंघ वाले सिरप। अरे कम बखत मारे, मुझे टीबी है क्या? असल में मैं बड़ी टेंशन में हूँ। क्यों? मेरे इन दिनों फियांसी के साथ झगड़ा चल रहा है। मुस्तफा तुम्हारा फियांसे भी है? ऐसा मुंह भलवान नहीं। अच्छा। ओए दा फियांसी। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। अच्छा जी, फॉरेन टूर्स में सबसे अच्छा मुल्क आपको कौन सा लगा? एम्स्टरडैम। अच्छा, हॉलैंड फिर अक्सर आना जाना होता होगा, हाँ जी। तो पता है कौन सा दरिया है वहां पे बड़ा मशहूर? ले भी बाजी फंसी हूँ। कभी रिवर डैन्यूब सुना? है कौन है? अच्छा जी, आपने अपने करियर में कभी इमरजेंसी लैंडिंग की? एमरजेंसी लैंडिंग सब तो पहले मोटी नु लाਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं, इसको क्या करते हैं? उतार देते हैं सर, सुट देते हैं इन्हू थल्ले। इन्हू की होना सर, ये 7 रब की गेंद में कोई जंप लेती रहती है और कई बार जहाज च आके वजी है फिर। वैसे आप बताएं तो कभी इमरजेंसी लैंडिंग हुई? कभी नहीं हुई सर इमरजेंसी लैंडिंग नहीं, इसकी वजह से इमरजेंसी रनिंग हुई है। क्या हुई है? इमरजेंसी रनिंग। वो कैसे? ये आई है जहाज ने मुड़ के वेखे तो उन्हें दौड़ लाती। सर इन्ना क डरिया सी बगैर पायलट तो उड़ गया। अच्छा, आप पर ये इल्जाम भी है कि आप मुसाफिरों की चीजें भी चोरी कर लेती हैं। इल्जाम तो इल्जाम ही है ना, साबित करो। वैसे बाजी आपके पर्स में से एक दफा चीजें निकली तो थी। चुप करनी मिसरी है। वो जो निकली थी आपके पर्स में से, वो क्या था? किसी ने पातियां सन मेरे परस विच। अच्छा, इसका परस ही मिलता है हर एक को, किसी और का परस नहीं मिलता। है आम तौर पे पता नहीं लगता, यकीन करो थके ही इन्ना हुंदा बंदा। कदी मेरे बैग च कोई चीज पाई जांदा है, कदी कोई मेरा हाथ किसी दी जेब च पाई जांदा है। तुम्हारा हाथ किसी की जेब? किस्सा मुख्तसर पीआईए के हालात इंतहाई दगरगों। तो सर यानी पीआईए में इंप्रूवमेंट कभी नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? ये पेसिमिस्टिक अप्रोच मेरे जैसे बंदे की तो हो ही नहीं सकती। पीआईए से बदतर इदारों को भी ठीक किया जा सकता है और मुनाफे में लाया जा सकता है। पीआईए में कुछ ज्यादा हीर पड़ने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे काम कर ले। आप 1 साल के अंदर अंदर उसके असरात देख लीजिएगा। सर मसलन तमाम स्टाफ के कागजात, क्रेडेंशियल्स फौरन चेक किए जाएं और जहां जालसाजी मिले फौरन बरतरफ करें। मुबैना तौर पर सिर्फ फरियाल तालपुर साहबा ने गुज़श्ता दौर में 3000 भर्तियां महज पर्ची पे कर रखी, सिर्फ पर्ची बेच के। इन्हें भी रखें, इन्हें भी रखें, इन्हें भी रखें। अच्छा मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? हमारी तो उनसे वैसे सियासी मुखालफत चल रही है। ये अल्ताफ भाई की पर्ची पे आई हुई है ना। अच्छा हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ले, डिगड़ी गाले में फिर भर्ती हो जाएंगी। शायद कि तुसी रेसलिंग से भर्ती होगे भाई। पिछली बार तो मोबाइल फोन्स निकले थे ना। अच्छा, देखना इस दफा इसके अटैची में से एटम बम निकलेगा। और एटम बम मैंने देख के कहेगा अम्मी को जाना है। फिर इसके अलावा मुनाफे वाले रूट्स ज्यादा से ज्यादा हासिल किए जाए। ते जेड़े कर्जे चढ़े ने पीआईए ते ओदा की करोगे? अब कर्जे इतने ज्यादा है कि उतारते उतारते नस्लें चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करते हुए ये सारा कर्जा अपने सर लेकर
इसको रिलीफ दे दे, ये रिलीफ में बेहतर परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, आपको सबसे हसीन डेस्टिनेशन कौन सी लगी? कनाडा मुझे बहुत पसंद है। बैफ। ए बैफ से एक बारी लेक लुइस चुक लिया तुम कभी गए हो वहां? जी। तो मरो दुआवा दियो खबरदार नु। बैफ देख आयो मरे। शेख ऊपर तो तेरे को कराया कुछ। So Dinos Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Dinos Raat आज का गाना हमने लिया है फिल्म लाखों में एक से, निसार बज़मी की नहायत शानदार कंपोजिशन, और ये एक तरह से ट्रिब्यूट है निसार बज़मी क्योंकि उनकी बरसी थी परसों। तनवीर नकवी के लाजवाब लिरिक्स गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं मुगीरा जी। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। अपने चरणों में सदा रखना मुझे मीत मेरे, चरणों में सदा रखना मुझे मीत मेरे, देवता मन के तेरे वास्ते हैं गीत मेरे, हो पिया गीत मेरे, बस यूं ही होती रहे प्यार की बरसात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। सामने तो जो रहे गम भी है मंजूर मुझे, सामने तो जो रहे गम भी है मंजूर मुझे, तुझको उल्फत की कसम करना नहीं दूर मुझे, ना कभी दूर मुझे, मेरे जीवन की खुशी अब है तेरे हाथ पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। नाज़रीन, आप मुझे देख के हैरान तो हो रहे होंगे, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। आजकल बहुत सारी गल्लां हो रही हैं, बहुत सारे लोगों ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसा महसूस कर रहे हो इस कुर्सी पे बैठ के? ये मैं पहली दफा नहीं महसूस कर रहा, मैं पहले भी बैठा हूँ। आपके बारे में कहा जाता है कि हर चैनल पे भांड प्रोग्राम आपकी वजह से शुरू हुए हैं। आप क्या कहेंगे भांडिज्म के बारे में? भांडिज्म के बारे में सवाल ये है कि कौन सा प्रोग्राम है जिसमें भांडिज्म नहीं है? बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें खामोश भांडिज्म है, बहुत से ऐसे हैं जिनमें फीका भांडिज्म है, चंद ऐसे हैं जिनमें मीठा भांडिज्म है। तो मैं नहीं समझता कि इसकी इख्तरा मैंने रखी या इसका आगाज मैंने किया। बड़े बड़े खूबसूरत प्रोग्राम्स होते थे, उसके बानी जो हैं मुझसे बहुत पहले बड़े आम लोग हो गुजरे। इस तरह फिर आप कमाल अहमद रिजवी को भी भांडिज्म का मूजिद करार देंगे, इशफाक अहमद को भी, क्योंकि तलकीन शाह उनकी इख्तरा थी। फिर 50-50, ये बहुत बड़े प्रोग्राम्स थे। मैंने अपने तौर पे इसी रिवायत को आगे चलाते हुए एक काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब से शुरू किया वो चल रहा है और उसमें कमी नहीं हुई, उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है और अभी होगा, मजीद होगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक मैं खुद इससे बोर नहीं हो जाता, मैं अपनी ऑडियंस को बोर नहीं होने दूंगा, अपने व्यूअर्स को बोर नहीं होने दूंगा। लेकिन सवाल ये कि ये जो लोग हमारी नकल करते हैं, आप उनसे पूछिए ना कि अगर आपसे ये मुश्किल काम नहीं होता तो आसान काम कर लें। आसान काम से मुराद? आसान काम वो कि जिसमें आपको कॉमेडी ना करनी पड़े, क्योंकि कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है। आफ्ताब साहब ऑलरेडी आप पहले काम कर रहे थे, लेकिन आपने कॉमेडी को ही क्यों चुना? कॉमेडी मुझे पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। मैंने खुद और मैंने बाय द वे जो कॉमेडी खुद पढ़ रखी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े राइटर्स, बहुत बड़े बड़े लिखारियों की, और वो सीधी सीधी कॉमेडी नहीं होती, उनमें बहुत सारी डार्क कॉमेडी भी होती है, रुला देने वाली कॉमेडी भी होती है। आप मुश्ताक अहमद यूसुफी की सिर्फ एक चीज ना देखा करें, सारा यूसुफी देखें, वो आपको हंसाएगा भी रुलाएगा भी। आप मार्क ट्वेन को देखें, वॉल्टेयर को देखें। अब ये नाम है जो बहुत से दोस्तों के लिए नए हैं, यकीनन आपके लिए भी नए होंगे। अच्छा मैं इत्थे की दाड़ कढ़ाउणा है, इसी शोज में भी आया बीबी, मेरे नाल भी गल करो ना। आप उनसे पूछिए, मेरे से नहीं पूछ सकते आप। मेरे क्लास फेलो ने इकट्ठे पढ़ते ने दोनों। सर तुसी दसो, तुसी इन्हां नाल पढ़दे रहे हो? जी मैं इसका इर्तिकाब करता रहा हूँ। यकीन करो बड़ा सुनहरी दौर सी कॉलेज दा, इकट्ठे जो पढ़ते सी। कॉलेज का तुसी एनिमल डिपार्टमेंट चुन दसो। अब देखो ना, उसने बहुत अच्छी गुफ्तगू शुरू की, एक सवाल किया था, ये बीच में इसने उचक लिया। सवाल ये था कि आपने कॉमेडी का इंतखाब ही क्यों किया? तू दस ना भाई मेरे कि बचपन तो एक अंदर भंड सी छोटा जिहा, उधर स्कूल कॉलेज दे विच भी इंज हुंदे, सानू गल ही नहीं करन देनी। ऐसी मैनू एक भाई ने जुगत की आज भी याद है। ये करने वाला भांड नहीं होता, क्विक विटेड और शार्प आदमी होता है। ये पढ़े लिखे ने इन्हू क्विक विटेड बना लिया है, मुंडा भंड ही है। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। क्यों मैं चुप करा, मेरे पेट च दर्द हो रही है, की वजह की है? यार एक मैं औखे करके सवाल याद करनी हो तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, प्लीज। एक सेकंड जी आफ्ताब साहब, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने कॉमेडी का इंतखाब ही क्यों किया? इन्होंने ठीक कहा है कि मैं शुरू से ही कॉमेडी को पसंद करता था। स्टाइल मेरा ऐसा था कि मैं मजाक मजाक में हल्के फुल्के अंदाज में सीरियस बात कर जाया करता था। तो ये बहुत अप्रिशिएट हुआ। मैंने पहले भी कई दफा इसका जवाब दे रखा है कि मैं जब कॉलम लिखना शुरू किया तो मैंने इसी अंदाज को अपनाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हिट हुआ, बहुत पसंद किया गया मेरा कॉलम, हस्बे हाल के नाम से। तो इसी नाम से मैंने टीवी शो शुरू कर दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। असल में बात पता क्या है, ये है मौका मिलने की बात। अच्छा। कॉलम मैंने भी लिखा है। अच्छा जी हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब से अच्छा कॉलम लिखा है मैंने। कॉलम इन्होंने लिखे, अखबार नहीं लबन दिया। जी जनाब, ये बात होती मौके की, मौका मिल जाने की बात है। दिल मेरा भी चाहता था कि मैं भी एंकर हो जाऊं, लेकिन क्या है, बस ये नसीबों की बात है। आफ्ताब साहब अब इनकी बात के साथ मुत्तफिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कम लोग हैं जो ये कहें कि हमें मौका ही नहीं मिला। मौका बहुत सौ को मिलता है। मैं चंद दिन पहले गुजारिश की थी कि अल्लाह ताला से मांगते वक्त सिर्फ मौका ही नहीं मांगना चाहिए, तौफीक भी मांगनी चाहिए। मौके तो रोज मिलते हैं, इन्हें आज भी मिला होगा, पता नहीं उससे इन्होंने फायदा उठाया कि नहीं। हाँ जी उठाया। कैसे उठाया? बाहर बिरयानी दी देख पक रही सी, नाई प्याज लैन गया, बड़ा अच्छा मौका ये शायर भी है सर? हाँ जी, शायरी मैंने बड़ी, मैं दसनी मैं थता शायरी बेटा मैंने भी बड़ी आला की है। एक्चुअल बात ये है कि ये एक बड़े शायर का बेटा था, ये हमसे आगे निकल गया।
क्यों, मैंने तो शायरी की ही नहीं। मैं कैसे आगे निकल गया? अच्छा नहीं की थी शायरी? नहीं की। तुम कहाँ रहते हो? असल में जफर साहब मेरे दोस्त थे। ये मेरा जबर साहब ना भी पढ़ते रहे थे। इनको बताओ ना मेरे भाई कि बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं वो भी दोस्त होते हैं। हाँ जी होते हैं, क्यों नहीं। मेरे मुनीर नियाजी साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे। सर और कोई बुजुर्ग दोस्त? हनीफ रामे साहब, अशफाक अहमद साहब, अच्छा कुछ जिंदा बंदा भी दोस्त है या नहीं? जावेद गामदी साहब। यार को आसान जो बंदा यार है। सर आपके कोई बुजुर्ग दोस्त? मेरे वो आप एडा बुजुर्ग है, हूं ओदा केड़ा दोस्त होना। आपके ख्याल में क्या कि खबरदार जो प्रोग्राम है ये लोगों की इस्लाह कर रहा है? बेपना बहुत करे, इसलिए कि बहुत देखा जाता है, और इस्लाह नहीं करेगा तो और क्या करेगा? क्यों देखा जाता है आखिर? सिर्फ आप समझते हैं हंसने के लिए लोग देखते हैं? ये इसके अंदर ये गुलदस्ता है, ये प्रोग्राम, ये बुके है, और ये एक फार्मूला है, और इतना आसान है कि लोग समझते हैं कि फार्मूला पकड़ लिया ना तो हम, ये वो फार्मूला नहीं है, ये वो तरतीब है जो आप 20,000 दफा भी कोशिश कर लेंगे, इस तरह की खुशबू, इस तरह का जायका क्रिएट ही नहीं हो सकता। या तो इसे बीट करेगा या खुद बीट हो जाएगा। मैं दोस्त होने के नाते से बात नहीं करता, मैं खुद व्यूअर हूँ इस शो का। जी ये जहां तक बात ये है ना कि या तो इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा। जी जी ज्यादा वाली बात तो मैं मानता नहीं। हाँ, इससे ऊपर वो शो मैं खुद बड़ी- एक मैं मिनट कहता में हूं- 10 लिया ना, मैं 10 नहीं लिया। अच्छा। यार ये वही कुछ हो रहा है जो मेहदी हसन बरादरान नहीं करते थे। असल में भी बात पता क्या है, मुझे मौका मिलता है ना, आज ये शो मैं कंडक्ट कर रहा होता, ये मैंने मशवरा इसे फर्स्ट ईयर में दिया था। हैं? फर्स्ट ईयर में जब ये स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल चंदा फर्स्ट ईयर। उस दौर की इतनी हसीन यादें आज भी मेरे पास, कि मेरे किताबें ले जाया करता था, मेरे कपड़े ले जाया करता था। हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? आफ्ताब साहब कभी इस शो की वजह से किसी की दिल आजारी हुई? बड़ी दफा हुई है, मैं इस पे बहुत शर्मिंदा भी हूं, लेकिन यकीन कीजिए अमदन कभी ऐसा नहीं किया। ये जब भी हुआ है सहमन हुआ है, महज रेटिंग लेने के लिए किसी की मट्टी पलीद मैंने नहीं की कि जी अच्छा है जरा ख्वार करें। नो, नॉट एट ऑल। तो एक चीज याद रखें, मैं रद्द अमल में कोशिश करता हूं कि कुछ ना करूं। ये सब चीजें मैं कर चुका हूं अयाम जहलियत में, मैं एक से एक बढ़कर हिमाकत करता रहा हूं। मेरी जिंदगी थी रद्द अमल की जिंदगी। किसी ने ये कहा ठीक, अब आओ फिर, तो आप तो फिर अपने आप को उस लेवल पे ले आते हैं ना। अब नहीं करता। रद्द-ए-अमल से याद है, सोशल मीडिया पे बाज लोग बहुत सख्त तनकीद करते हैं, उन्हें आप किस तरह लेते हैं? अब यकीन कीजिए मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता। आई स्वेयर मैं उनकी हिदायत के लिए दुआ करता हूँ। सर ये जो आपका प्रोग्राम देख के बहुत से लोग खुश होते हैं, ये भी आपको कमेंट्स करते हैं, आपको दुआ देते हैं, ये आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। पिछले 8-10 साल में हमारे वो आर्टिस्ट, इतने बड़े बड़े महान आर्टिस्ट जो थिएटर खत्म होने की बिना पर, फिल्म खत्म होने की बिना पर ज़बू हाली का शिकार थे, फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुके थे, उनकी गाड़ियां रिपोजेस हो रही थी, उनके घरों में मसाइल पैदा हो रहे थे, अल्लाह के फजलो करम से सारे फिर से इन हो गए। वो हमारे शो में हो या ना हो, वो हमारे लेवल का शो करें या ना करें, कम से कम उनके मुआवजे तो तगड़े मिलते हैं ना उन्हें। वाह, उन्हें इसका इत्मीनान तो है ना। उसका कुछ क्रेडिट आप मेरे प्रोग्राम को जरूर देंगे, मुझे दें या ना दें। वाह, जबरदस्त। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं स्वाद मिट्टी कटा कहना, मैं स्कूल च भी कख नहीं, साढ़े ते साढ़े कहण नूं हुण भी कख नहीं छड्डिया। गुजारिश ये है, सबसे पहली मैं आपको बता दूं कि मेरी और आफ्ताब की दोस्ती जो वो कैंटीन पर हुई थी। जाहिर है वहीं पे हो सकती थी। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। तो आपके भी कोई फैंस हैं या नहीं? तो की वजह मैं को बांधते रहा रेछा मैं कोई कि मेरे फैन नहीं है। आपके दोनों जवाब दुरुस्त हुए। अच्छा क्या दौर था वो कि जब मैं और आफ्ताब घोड़सवारी किया करते थे। सर वाकई ये बात सच है? मैं इसके साथ घुड़सवारी नहीं करता। इस पे बैठ के घुड़सवारी। आप शो में देखते हैं कि अक्सर इनके शिकार की बात होती। हाँ, आफ्ताब को ये निशानेबाजी किसने सिखाई? किन्ने? मैंने। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਪਕਾਨੇ ਵਾਲਾ ਭੱਟਾ ਸੀ। मैं अगर आपको ये बता दूं ना कि आफ्ताब ने मैट्रिक कैसे किया है, आप हैरान रह जाएंगे। ये बड़ी दिलचस्प गल है। मैं एक दफा मैट्रिक कर रहा था, ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। यार आफ्ताब की बदतमीज लोग इकट्ठे तुम कीते। बात ही इस कदर बेहुदा कर रहे हो। मैं एक दफा मैट्रिक कर रहा था, मैट्रिक में गुसल कर रहे थे। देखे ना, वो ही बचपना, वो ही पांडपुना, नहीं जा रहे अंदरों। सर इस शो से मुतालिक एक सवाल जो मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगी,
इस पूरे शो में कौन ऐसा आर्टिस्ट है जो आपको बहुत तंग करता है? जो नए नौमूज हैं, नए आते हैं जो, बाकी पुराने सारे आप ये लोग जो तो आपकी 3 तिगड़ियां हैं, तीनों ये तो बहुत तगड़े हैं, तो मुझे सिखाते हैं बहुत कुछ। अच्छा मैं एक सवाल आप तक करना चाहता हूँ जी। आगा माजिद कैसा आदमी है? फजूल। जाइएगा कहीं नहीं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इज्जत माब डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की सादत नसीब हुई। इस गुफ्तगू का चर्चा दुनिया के गालिबन हर कोने में किया गया और कोई बईद नहीं कि मरीख तक भी ये खबर पहुंचाई गई हो कि ट्रंप साहब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन। आइए चलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, जहां पीएम की मीडिया टीम इस वक्त सरगर्म अमल है। जिन्नी मर्जी तंज कर लो कि खबर मरीख ते छप गई, अतारत ते छप गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े खुश ने, बड़े। नवाज शरीफ के साथ वैसे डोनाल्ड ट्रंप ही खुश हो सकता है। मैडम क्या हाल है आपका? और मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ये ट्रम्प वाला किस्सा है ना, ये मीडिया ने ऐसे एग्जैजरेट कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ट्रम्प को प्राइम मिनिस्टर से बात करके वाकई बहुत खुशी हुई है। हाँ यकीनन हुई होगी, लेकिन ट्रंप के मूड्स का को पता चलता है? वो इस वक्त यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाता है। अच्छा गल सुना, हाँ जी। इस महीने दी तनख्वाह तो सानू मिल गई है। चलो मुबारक हो। साडा अगला महीना महफूज है ना। यार आप लोग इनको क्यों हंसने का मौका देते हो? आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब हमने ये कर लिया तो वो भी करेंगे। वैसे उन्हां दी गल्लां सारियां सच्ची साबित होंदियां हैं। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਗਈ, ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਖਤਰਾ है। क्यों सर, नवाज शरीफ की हुकूमत है, हाँ जी है। खतरा टल गया नहीं है? अच्छा गल सुनो, तुम सानू 5-6 महीने दी एडवांस तनख्वाह दे दो। 5-6 महीने की? चलो मनूस बोल पिया भाई, तू 2 महीने दी तनख्वाह ले दे। अच्छा गल सुनो, 1 हफ्ते दी ले दो। यार आप खामोश रहे भैया, इन जैसे लोगों की आदत है बदगुमानी फैलाना। हम इंशाल्लाह हर महाज पे लड़ेंगे। बाजी को सप दे जे मरिया नहीं, केड़े महाज ते लड़ोगे? सबको। और जेड़ा गेम खेडन दे ने, यकीन करो सब मरिया नहीं, बुढ़ा हो गया बेचारा। मैं तो लगता है इन्होंने सब भी रिटायर कर देना। वैसे आपको अब तो मान जाना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। आपकी परफॉर्मेंस निहायत शानदार रही है भाई। एक तीसरी ऑफशोर कंपनी पकड़ी गई है आपकी, इससे बेहतर परफॉर्मेंस क्या हो सकती है आपकी? हाय हाय, हैं? अच्छा गल सुनो, 2 दिन दी तनख्वाह दे दो। अगर तनख्वाह नहीं तो कोट ही ला दे। बाजी त्यातर नलकियां दा काम सीख लिए, पर तन ते पहले ही आउंदा। अरे कोई नवा रौला पिया है? हाँ जी, कुलसूम नवाज साहिबा का लंदन में एक मकान सामने आया, मकान जो उनकी मिल्कियत है, जो कि डिक्लेयर्ड एसेट्स में नहीं है। और अब ये कुलसूम नवाज शरीफ को ये नहीं कह सकते कि जी ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। यानी ये मुमकिन है कि बीवी डिपेंडेंट ही ना हो। देखिए को माँ बाप बहन भाई भी तो गिफ्ट कर सकता है ना। ओके, लेकिन मसला ये नहीं है कि गिफ्ट हुआ या नहीं हुआ। पहले हर चीज आप गिफ्ट ले रहे हैं तो ये भी ले ले। आप गैरों से गिफ्ट लेते चले जा रहे हैं, चलो बहन भाई से ले ले और डिक्लेयर तो करें। लो इस गल ते फड़े जाना। गल सुन, अपनी ऐनक ही दे दे। यार कल लेना भाई। पता नहीं कल हो ना हो। बाजी देख ले, अब आप, मेरे खालू का ट्रांसफर अभी बीच में ही है और आपने कहा था कि सड़क का ठेका भी आपको ही देंगे। मिल जाएगा, मिल जाएगा, आप 2 महीने वेट कर लें। 2 महीने? गल सुन, तू तो अच्छी है ना। आफ्ताब साहब, ये इतनी बड़ी मीडिया टीम है, कभी आपने इनसे ये पूछा है कि प्रेस रिलीज कैसे निकालते हैं? इतने एक मनूस कटनी से असी 2-2 रख के बैठे हैं। और वो ठीक कह रहा है, एक प्रेस रिलीज तो तुम लोगों से दी नहीं गई। यानी ट्रंप साहब के फोन पर वो जगह साई हुई और आप आराम से बैठे। उड़ की करते हैं, इतने तेल पा के अग लाते हैं। नहीं, इस पे क्यों डालते हो? और अपने से पालवा ओहो, इन्ना तेल कतर तो ले आओगे? ओ कतर तो तेल नहीं, गैस आउंदी अन्नी दिया। खत भी ते आंदे ने। अच्छा गल सुनो, कतर तो तनख्वाह आ सकती।
मुझे तो लगता है इस हुकूमत को जग हंसाई की आदत हो गई है। अभी पिछले हमारे इसहाक डार वाला केस अभी बंद नहीं हुआ तो ये नया खुल गया था। जी, उसे गालिबन पूरी कायनात का सबसे कामयाब वजीर खजाना करार दिया गया। वो तो शुक्र है कि IMF बीच में बोल पड़ा, वरना ये उस अवार्ड को भी हजम कर जाते। आफ्ताब साहब है की होया ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਤੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ हाय ते इन्नी तनख्वाह कादी लैन डे ने ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अच्छा जी, ये एक फजूल सा रिसाला है द इमर्जिंग मार्केट्स। ये मशहूर है इस बात पर कि इसमें आप इश्तहारात दें, इसको फाइनेंस करें किसी तरह से, जो चाहे छपवा लें। तो हमाकत की इंतहा देखिए कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने 5 कंपनियों से इन्हें इश्तहार दिलवाए। 2 बैंक है उसमें, एक नेशनल बैंक, एक ज़राई तरक्याती बैंक, 2 इंश्योरेंस कंपनियां, नेशनल इंश्योरेंस और स्टेट लाइफ, और एक रिफाइनरी है पाक अरब। इन सब ने उसे ठीक ठाक तगड़े इश्तहार दिए। उन्हें इश्तहारात कंपनियां देती हैं गुडविल के तौर पे। उन्होंने कहा होगा कि अच्छा यार दो इन्हें, ये अच्छा रिसाला है, आप एडवर्टाइज करें। उन्होंने कर दिया होगा। उन्हें क्या पता कि अंदर खाने डील क्या है। अब उस डील के तौर पे उसने डिक्लेयर कर दिया कि जी साउथ एशिया का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बकौल IMF हजरत अल्लामा इसहाक डार साहब। तो फिर ये हुआ कि IMF चिल्ला उठा। उन्होंने कहा मेरी रेटिंग ये हरगिज नहीं है, मैंने नहीं कहा। इसके जवाब में फिर द इमर्जिंग मार्केट्स वालों को टीवी पे आना पड़ा। वो कहने लगे कि जनाब ये हमारी अपनी असेसमेंट है, IMF का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि इस पर प्राइम मिनिस्टर समेत कम से कम 5 वुज़रा, 2 गवर्नर्स, 2 वुज़रा आला ने मुबारकबाद दे रखी थी। उसूली तौर पर तो उन्हें मुबारकबाद वापस लेनी चाहिए। उल्टा जुर्माना करना चाहिए। और वैसे जुर्माना तो अदा करना पड़ेगा क्योंकि लिखा जा चुका है ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਨਾਬ तारीख में। ये जुर्माना तुम तारीख में अदा करोगे। ये अगली तारीख पे आना लिए और ये हिस्ट्री कह रहा है, हिस्ट्री, वो तारीख नहीं जो अदालत डालती है। ਉਹ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ बुकरात ਦੇ ਬੱਚे मैं ये गुजारिश कर रहा था कि सियासी जुर्मानों के असरात 5 साल या 10 साल तक रहते हैं, और तारीखी जुर्माने आफ्ताब साहब जरा बताइए इन्हें। जी जी, तारीखी जुर्मानों के असरात तो सदियों तक रहते हैं। हम आज भी सलातीन दिल्ली के मुगलिया सल्तनत के जुर्माने भर रहे हैं। हम वो कर्ज उतार रहे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। सर ये क्या मिसरा है? ये इफ्तिखार आरिफ हैं कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वाह वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। मैडम आपकी तरफ देखते तो लगता है हर चीज स्मूथ चल रही है, और ਤੁਹਾਡੇ मुखालिफ ਤੁਹਾਡੇ कागजात फरोल के ਵਿੱਚੋਂ सबूत ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਨईम बुखारी ने तो देखो जरा। वैसे नईम बुखारी की परफॉर्मेंस मैं समझता हूं आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल है। उसने कम बैक स्टेज किया, इट्स अ कम बैक। आप जब गेम से निकले होते हैं ना तो फिर आप डेस्परेट मेजर्स लेते हैं, और मैं समझता हूं इस वक्त की परफॉर्मेंस नंबर 1 नईम बुखारी की है। और नईम बुखारी का साथ बहुत तगड़ा है। आप बाबर अवान को मजाक समझते हैं? बाबर अवान 2 आदशाह है, 2 आदशाह। सही कह रहे हो, वकीला तो शेख रशीद। और सर फवाद चौधरी भी तो है ना। ये वैसे टीम बड़ी शानदार है। ते साडे वाले पासे तानु कोई नजर नहीं आंदा। दानियाल अजीज, ही इज टू गुड। फिर मुसद्दक मलिक, वो भी बड़ा प्रेजेंटेबल आदमी। इन्हां दोवां च वकील तो एक भी नहीं गा। वैसे इन्हां दोवां नूं रला के एक वकील ना बना लिए। दानियाल अजीज किडे हैंडसम ने, एक साडा दानियाल है, ये हैंडसम है। सर असल गल है कि मुखालिफ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। क्या किए? ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। आप उर्दू क्यों नहीं बोलते? आप तो अच्छे खासे अफसर हैं। खेत मिट्टी अच्छे रह गए, 24 घंटे काम करके अब मुंह मेरा हाथी का कचौनर का हो गया। अच्छा गल सुनो, कोई सस्ते सस्ते काम ते दसो। देखो हालात चंगे भैड़े आ ही जांदे ने इंसानां दे उत्ते, तुसीं एंकरिंग तो पहले की करदे सो? को अपना तजुर्बा ते शेयर करो। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता हूँ। ओ केड़ी है? पाकिस्तान का हर जिला, हर तहसील, हर गली महल्ला पाकिस्तान ले लेले, चतरे, पेड़ा, बांदर, बकरे सब कुछ किया है। और पहाड़ी बकरा तुमने कहा ही नहीं। वो अपना कहना भूल गए ना। तो सब्जेक्ट ही दो, सी पैक तो ना बनाइए। अब देखे ना, जो काम करने निकलता है घर से वो सी पैक करने। एक अताबाद लेक क्या बनी थी, पूरी कायनात के कैमरामैन वहां पे पहुंचे हुए थे कि ये अभी टूटेगी, अभी इसमें से पता नहीं क्या निकलेगा। ये क्या निकलने वाले चक्रों में ना पड़ो
और ऑफ बीट काम करना सीखो, हट के। हट के वेस्ट इंडीज चला जावा वो तो हबशी तो डॉक्यूमेंट्री बनावा नहीं नहीं, ये इसमें बनाओ, ये तुम्हारे साथ बैठा है। ये भी हबशी है और बेवकूफ, मैं कह रहा हूं सीनियर ऑफिसर पे बनाओ। वैसे हबशी की डॉक्यूमेंट्री मुश्किल नहीं होती यार लानत भेजो, हबशी का तस्करा कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि चंद अफसरों को पिक करो, 4-5 बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो बेचारे सूली पे लटके रहते हैं। जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं ना, तो बहुत सारी बातें हम ये समझते हैं कि सारा प्रेशर पॉलिटिशियंस लेते हैं। नो 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 नो, साथ उनके एसोसिएट्स जो है, मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स, वो एक ट्रायंगुलर टाइट रोप पे चल रहे होते हैं। उन्हें स्टेट की जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां भी, और जाती दोस्तियां यारियां भी। आप इस बंदे की लाइफ से ये पिछले 3 महीने और अगले 2 माह, 5 महीने पिक कर लें कि इसका डेली सुबह दोपहर शाम कैसे कैसे क्राइसिस में से गुजरता रहा। ये आप 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाएं, और मैं समझता हूं अवार्ड विनिंग काम कर सकते हैं अगर आपकी नीयत हो काम करने। ये 10 मिनट की बननी नहीं ना, ये कोई 1.5 घंटे की बनेगी। सर आप पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, आपको इतराज तो नहीं? भाई बना लो, लेकिन पैसे वही देने जेडे साढ़े तो ना मुक्के ने। पहले तिकर को काम कीता ही, कहीं बैठा ही रहना थे। 5 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है मैंने, और 3 उनमें से अवार्ड विनिंग है। वो बंदे मिला सकते हो मैंने? कौन से? जेडे तेन अवार्ड देंदे हैं। आपको पता नहीं, ये बहुत टैलेंटेड आदमी है। तुसी छड्डो सारी गल्लां, ये दसो अज सप किन्ने मारे ने? मैडम और नुक्कर वाला भी मरता जी, मारो मारो। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।